You. Yes. What's your name? I can't see you. That's why Oh, okay. Jitendra. It's a Jitendra. Jitendra. Okay. Please, Okay. guys, first tell me your name, then ask your question. That would be better for me because I don't understand the voice only, right? So, Good evening, sir. yes. Good evening. What's your name? Sir, my name is Shivanshu. Himanshu. Okay. Yes, sir. That's great. So, I hope everyone has this book with them. Excuse me, sir. Right. So, today we are Sir, starting this. Yes, yes. yesterday I was not able to join the class. नो दैट्स फाइन बिकॉज कल हमने कुछ खास नहीं किया था. हमने सिर्फ जस्ट दैट वाज अ इंट्रोडक्शन क्लास, राइट? तो Okay, thank you. दैट वाज नथिंग लाइक दैट. सो आई जस्ट कवर्ड, Okay, मतलब उसमें मैंने सिर्फ इतना बताया था कि मतलब हम लोग क्या कवर करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज में. हमारा मतलब किस तरह से हम ट्रैवल करेंगे, राइट? okay, यस sir. काव्या, गुड इवनिंग. ऐसा कुछ भी नहीं था, बस आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग आई कैन से. ठीक है. Sir, can you tell me that what is in the syllabus? Syllabus, I already shared one PDF file on the group, right? You can download the syllabus from there. Yeah, sir. That I have know that Hmm. once, sir, I have joined one institute that is of Hmm. convent. Hmm. You can speak in सर Hindi, तो no problem. उसमें मैंने Uh, ओके सर थैंक hmm. Yes, yes, tell me, where are you? Just hold on a second. चलो सेशन स्टार्ट करते हैं फिर. सबको सुनाई दे रहा होगा, आई Sir, होप. हाँ जी, बोलिए. sir, before you begin, हाँ. sir, can you please share the link for the book because it's my first day today. No problem. I will share the link again into the group, or you can ask any group mate to share the link again, right? Yeah, thank you. No problem, I'll share it. See, हमारे पास हैं इतने सारे हेल्पफुल लोग, तो बुक मिल जाएगी. बुक मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर. आज CCNA, ठीक है, जिसका नाम है, फुल फॉर्म है जिसकी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ दिस सिस्को ट्रेनिंग. ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग सिर्फ बेसिक ऑफ नेटवर्क कवर करते हैं. ठीक है, इसके बाद आप किसी भी सिस्को के किसी भी अदर ब्रांच में मूव कर सकते हो. फॉर एग्जांपल राउटिंग स्विचिंग होता है, डेटा सेंटर होता है. अगर डेटा सेंटर में स्पेशलाइजेशन करना है तो आप डेटा सेंटर की तरफ जाओ. सिक्योरिटी में करना है तो आप सिक्योरिटी की तरफ जाओ. ऐसे करके डिफरेंट वेरिएंट्स, आई कैन से कि बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जिन वेरिएंट्स के अंदर आप जा करके अपने आप को स्पेशलाइज कर सकते हो. ठीक है, तो जैसे मैंने सिलेबस आपके साथ शेयर किया था, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक था मेरा, जो उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर मैंने जो उसमें मेंशन किया हुआ है, वो चैप्टर है इंटरनेट वर्किंग. ठीक है, ये ICND की बात करता हूँ. यहाँ पे क्या पहले क्या होता था, हमारे पास ICND 1 और ICND 2 होता था सिलेबस में, बट रिसेंटली सिस्को ने 24 फेब के बाद में कुछ चेंजेस किए हैं. उसके बाद में अनीता, ओके, इंग्लिश, ओके. So Cisco made some changes, right? Before the course was like ICND 1 and ICND 2. Okay. Now everything got merged and now it is converted into one course, right? But the basic concept of this course is almost same. So still we use the same terminology
and same topology and each and everything, right? Just the course name got changed, right? Now, today we are starting with internetworking, right? This is the first chapter that we are going to start with. So, I'll do 2-3 things when I start this chapter. मेरा जो थिंकिंग कहता है, मेरा जो तरीका है टू टीच यू, राइट, I will use this book as well as internet, so that even if I am not available, you can search each and everything over the internet, right? And the best, I'll tell you the best way and best keyword to search that particular scenario or particular technology. Okay. Now I've created one slide for you so that everything will get easier for you to understand, right? So let's start with internet networking. Can someone read this for me? That would be better for me, because I am the only person who is keep on speaking, right? Yes. Anyone? Network is a collection of interconnecting devices connected together in order to share the resources: printer, scanner, hard disk, files, folder, etc. Okay, guys. So what is network, right? The first question is, what is network? And network, as you can see, network is a collection of internetworking devices connected together in order to share the resources. And what are the resources? Resources like printer, scanner, hard disk. Apart from that, we also share files over the internet, right? That is also a resource. Folders over the internet, and even the Zoom meeting which we are going through with, this is also by using network resources, right? Everyone is connected with their mobile phone, and some people are connected with their laptop, and some people might be connected with their TV, right? So everything is like a resource, right, that we are using for to create a network, to build a network, right? So this is what the network is. I think you already know about it, so I don't need to explain much about it, right? So let's move to the next slide. Okay, now types of network, right? So I can say why. First, think about why we need network, right? So nowadays we need network. I can say we need network to connect two and more than two devices, because minimum we need two devices to create a particular network, right? Not a single device, minimum two device. Two and more than two device can create a network, right? So there are certain type of networks, like we have PAN, LAN, CAN, MAN, and WAN, right? Simply you can search PAN, right? Here it is single user network. PAN means personal area network, right? Personal area network means the example for personal area network is Bluetooth. We all have Bluetooth. We also have Wi-Fi in our phone, right? So जो पर्सनल एरिया नेटवर्क के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ब्लूटूथ और वाईफाई, ठीक है? इनका जो रेंज होता है वो मैक्सिमम 10 मीटर होता है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड पैन. 10 मीटर के अंडर के एरिया में इफ यू आर इन अंडर द 10 मीटर, then you are connected with the other device. If you are out of the 10 meter range, then you are not, you will get disconnected, right? Apart from that, this is a single user network, I can say, right? Because only one person send or receive data at a time. We cannot connect two mobile phone with the two devices, right? I can say Bluetooth. With the Bluetooth, you cannot connect two people at the same time,
That's why that's a single user network, right? Next is LAN. So LAN is like a within a building or within a floor. So let me search one LAN diagram for you. Just type LAN, simple, very simple, right? And you can get so many pictures. Just click on this image button and you will find so many pictures, right? You don't even need to read any theory to get to know about this LAN, right? So what is LAN is, you can type LAN in building. Right. So here's the example of one LAN network, right? For example, हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 total we have 6 floors, right? And each and every floor has one LAN network. Like first floor पे हमारे पास 100 computers हैं, and second floor we have 100 computer, and on third floor we have another 100 computers, right? So each and every floor has its own LAN. Done. तो इसको हम क्या बोलेंगे? LAN, right? The LAN thing is done. Then move to CAN. CAN is like campus area network. ठीक है? Campus like campus जैसे आपको मालूम होगा कि जैसे हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट कैंपसेस होते हैं, ठीक है? तो ये भी एक उसी का एग्जांपल है. एक कैंपस ये है, एक कैंपस ये है और एक कैंपस ये है, ठीक है? तो ये भी इसी का एग्जांपल है. This is also the example of a campus. There are 3 buildings, right, with different with a group of LAN, right? So this is called campus area network, right? Now let's move to next. After campus area network, we are moving to metropolitan area network, right? Metropolitan, like we have metropolitan city, like we have Delhi NCR. In Delhi NCR we do have Gurgaon, we also have Noida, right? So this is the example of metropolitan area network, because we are connecting 3 cities together. That is the example of metropolitan area network. And WAN. See, WAN is something we are connecting from Mumbai to London. That is called WAN. So there is no limit of the range, right? If you want to learn more about these all network diagrams, then you can use that book that I gave you, right? So that you can learn in more detail, right? So next is based on computing method. See, once you install any window in your computer, right, you only have 2 things. Means by default your operating system is the member of work group और the member of any server, ठीक है? किसी भी कंपनी में आप जाओगे, अगर जैसे आप एक इंडिपेंडेंट लैपटॉप परचेस करते हो, इंडिपेंडेंट डेस्कटॉप परचेस करते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको बाय डिफॉल्ट जब ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप का मेंबर होता है, मतलब एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर होता है वो, ठीक है? अगर हम किसी कंपनी के नेटवर्क में जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उसका जब हम कंप्यूटर की जाके प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो वो एक डोमेन का मेंबर होता है और वो डोमेन उसको कंट्रोल कर रहा होता है, राइट? तो कंप्यूटिंग मेथड के बेस पे 2 ही टाइप के सिर्फ कनेक्टिंग मेथड हो सकते हैं, या 2 ही टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं. वन इज वर्क ग्रुप एंड द अनदर वन इज क्लाइंट सर्वर. Now let's move to the next slide. I know I am going fast because I have to cover so many things, right? Guys, you can simply search LAN WAN MAN. Just change this. Just type on the internet WAN, right? You can get the example of WAN, right? This is SD WAN. Just
leave it for the day. You can type wide area network. And there हेलो are यस सर, मैं रणविजय हूँ। yes. मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जो हमारे घर में वाईफाई कनेक्शन हमने ले रखी है, वो तो लैन के अंतर्गत आता है ना? यार मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, द एग्जांपल विच आई टोल्ड यू, ठीक है, बिल्डिंग वाला, यस सर। ठीक है। तो आप एक बिल्डिंग के अंदर हो तो आपका घर जो है वो पूरा लैन है, ठीक है। जब घर से बाहर जब आपको कनेक्ट होना है तो जो मॉडम है हमारा, द मॉडम विच यू आर यूजिंग, दैट इज हेल्पिंग अस टू कनेक्ट विद द वाइड एरिया नेटवर्क, राइट, टू द इंटरनेट। मॉडम के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो, इसका मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। यू कैन पिंग एनी सर्वर विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मतलब आप फेसबुक के जो कैलिफोर्निया या यूएस में जो सर्वर्स रखे हुए हैं उनको आप अपने घर से चेक मतलब लोकेट कर सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो, राइट। सो मॉडम के ओके, जो दिस इज अ आगे जो वैन। लाइन है, यस, दैट इज अ वैन, वैन, ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ, और जो आपको सर्विसेज देता है, दैट कंपनी कॉल्ड आईएसपी, राइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Done. So let's move to Amit. Raise hand, someone. Guys, I'll give you 15-20 minutes at the end of this session. Just take one notebook with you so that you can write your questions. Right? That would be better for me and better for everyone. So first, let's finish this session. Now we are looking at based on media, right? Means how do we connect a particular network or particular networking device? I can say, okay, there are only two ways. We can connect either wired, or we can connect any particular computer or particular machine without wire. That is called wireless, right? So wired में हमारे पास क्या होता है? Wired में, in terms of wired, we have twisted pair, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल। एंड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, वन इज यूटीपी एंड एसटीपी। यूटीपी इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड एसटीपी इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, राइट। एंड द केबल फॉर ट्विस्टेड पेयर we use is cat 1 2 3 4, these are the different categories, right? So nowadays most of the time we are using 5e or 5e plus, right? Most of the time most of the company using this type of cable, right? Apart from this, we also have coaxial cable. Next we have fiber cable. This is the medium type, I can say, right? This is the medium type. So we have in wired media, we have three type of cable to connect any particular network or computer. Now let's move to the internet. So twisted pair, right? So first let's find one UTP cable. What is UTP cable, right? So this is the cable that is called UTP cable. UTP means there is no shield. There is no shield. Let's find STP cable now. See, look at this. There's one shield, right? यहाँ पे इसमें एक शील्ड है, और जो यूटीपी केबल होती है इसमें कोई भी शील्ड नहीं होती, इसलिए इसको अनशील्डेड बोलते हैं यू, एंड एस में बोलते हैं इसको शील्डेड, ठीक है। यूटीपी यू कैन टाइप यूटीपी वेस एसटीपी केबल, ठीक है। यहाँ पे आपको रेफरेंस दिख जाएगा इसमें इस पिक्चर में।
देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। ये रहे, ठीक है। यूटीपी केबल में क्या है, यूटीपी केबल में ये भी एफ यूटीपी है, फॉरगॉट इट, ठीक है। एसटीपी इज शील्डेड वन और यूटीपी विदाउट शील्ड में, ठीक है। तो जो यूटीपी केबल आती है दैट इज लेस इन कॉस्ट आई कैन से, ठीक है, बहुत कम रेट आता है इसका। और जो शील्डेड आता है वो कॉस्टली आता है। व्हाई वी यूज द शील्डेड वन इंस्टेड ऑफ अनशील्डेड वन, ठीक है। हम शील्डेड वन इसलिए यूज करते हैं ताकि जो भी जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, फॉर एग्जांपल हमारे जो लाइन केबल्स हैं ये हमारे कुछ पावर केबल्स के पास से भी जाती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं, जिससे क्या होता है हमारे डेटा पैकेट लॉस्ट हो सकते हैं या फिर डेटा पैकेट इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इन वायर्स में डेटा पैकेट फ्लो होते हैं हमारे, ठीक है। अगर दो कंप्यूटर इस लैन केबल से कनेक्टेड है तो डेटा पैकेट फ्लो हो रहा है। इन केस अगर वहाँ पे कोई हाई वोल्टेज वाली लाइन इस केबल के साथ जा रही है तो वो डेफिनेटली उसको डेटा पैकेट्स को लॉस्ट करेगी, ठीक है। इसलिए ये शील्डेड वाली हम यूज करते हैं। शील्डेड वाली शील्डेड ट्विस्टेड ब्रेक केबल इज कॉस्टलियर देन द यूटीपी केबल, राइट। नेक्स्ट केबल इज कोएक्सियल केबल। Just go here and find coaxial cable. So coaxial cable, I think ये केबल देख के सबको समझ में आ गया होगा। Now everyone know about this cable that we use in when we connect TV to any dish antenna, right? We use this type of cable. So just give me a moment. ये केबल जो हमारी होती है ये हमारा टीवी में जो हम जो कोएक्सियल केबल काम लेते हैं, पहले हम ये केबल काम लेते थे। स्टार्टिंग में जब नेटवर्क स्टार्ट हुए थे तो हम स्टार्टिंग में इस केबल को हम डिफरेंट डेस्कटॉप्स को कनेक्ट करने के लिए काम में लेते थे, ठीक है। अब कोएक्सियल केबल के कुछ पार्ट्स होते हैं। एक होता है आउटसाइड इंसुलेशन, जो सबसे ऊपर का होता है, जो ब्लैक वाला जो पार्ट होता है, उसके ऊपर एक कॉपर मैश की शील्ड होती है, ठीक है। उसके बाद एक आइसोलेशन होता है और एक कॉपर वायर होता है, ठीक है। तो ये जो कॉपर मैश की जो शील्ड है ये भी एक ये एक पॉजिटिव होता है, और जो बीच वाला जो कॉपर आ रहा है इसको बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये है कोएक्सियल केबल। शील्डेड भी आती है, जैसे इसमें शील्ड है, शील्डेड भी आती है, इसमें फॉइल शील्ड लगी रहती है, ठीक है। ये आउटर जैकेट है, राइट। दिस इज ए कोएक्सियल केबल। एंड नाउ लेट्स मूव टू फाइबर केबल। फाइबर केबल जैसे आजकल आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है, ठीक है। तो फाइबर क्या होता है, फाइबर केबल में एग्जैक्टली क्या होता है, एक पूरी जो केबल होती है ग्लास में होती है, इसके अंदर मतलब अंदर पूरा प्लास्टिक का एक टनल टाइप का होता है। इसको मैं ऐसे दिखा सकते हैं। और इसमें जो डेटा है वो ट्रेवल करता है लाइट की स्पीड से, क्योंकि जो बिट्स सेंड करते हैं वो बिट्स किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई द फाइबर केबल इज मोर फास्टर देन अदर केबल्स, ठीक है। इसमें भी सेम वही होता है, एक आउटर जैकेट होता है और इसके अंदर स्ट्रेंथ मेंबर, यू कैन से कि एक ऊपर से एक शील्ड होती है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर से एक और कोटिंग होती है प्लास्टिक की, उसके अंदर ये क्लैडिंग होती है, जिसके अंदर ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इसके अंदर हमारा डेटा जो है वो ट्रैवल करता है। इसके अंदर एक और शील्ड है, कोर शील्ड के अंदर हमारा डेटा ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इस कोर शील्ड में डेटा ट्रैवल करता है। ये बिल्कुल ग्लास की बनी होती है, तो इसलिए इसके ऊपर इतनी ज़्यादा शील्ड देना ज़रूरी होता है, सो दैट फ्लेक्सिबली, मतलब इसलिए टूटे ना अगर इसको हम इन केस हम कहीं पे डालते हैं तो, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स हम आजकल यूज़ कर ही रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी कंपनियां कर रही हैं फाइबर ऑप्टिक्स, और धीरे धीरे ये घरों में भी आ रहा है, ठीक है। हम लोग सब कवर कर रहे हैं इसको भी, सब कुछ फाइबर में कन्वर्ट होते जा रहा है। और
इसलिए आपकी जो आजकल जो इंटरनेट स्पीड आ रही है वो आ रही है 100 Mbps। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ ब्रो स्विच में लगा हुआ है, राउटर में लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है ये, ठीक है। इवन जो हम वैन है, जो डिफरेंट सिटीज़ के बीच में जो कनेक्टिविटी हम जो बढ़ा रहे हैं, हमारे घर में आता है 100 Mbps का लिंक, लेकिन जो कंपनी आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल एयरटेल, ठीक है, फॉर एग्जांपल BSNL, इनके पास 100 Mbps का लिंक नहीं होता, इनके पास होता है 1000 Gbps का लिंक, 10,000 Gbps का लिंक, इनके पास ये लिमिट होती है, ठीक है। तो उसमें ये फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करते हैं। दे आर नॉट यूजिंग एनी कोएक्सियल केबल या जो आपका जो टेलीफोन लाइन आती है, ये सब ये लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये सिर्फ फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज़ करते हैं टू कनेक्ट डिफरेंट टेलीफोन एक्सचेंज। वी यूज़ दिस केबल, ठीक है। डिफरेंट टेलीफोन एक्सचेंज कनेक्ट करना है, हमें मुंबई से लंदन कनेक्ट करना है, फाइबर ऑप्टिकल केबल लेनी पड़ेगी, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल में हमारा उसका जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, 10,000 Gbps, मतलब पर सेकेंड 10,000 GB वो ट्रांसमिट करती है केबल, ठीक है। तो वो केबल भी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो इस टाइप की है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, डन विद द वायर्ड मीडिया, ठीक है। वायर्ड मीडिया में 3 टाइप की केबल्स हैं जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं नाउडेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है वायरलेस में आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लूटूथ हमको पता है सबको, जो हमारे फ़ोन में होते हैं। नेक्स्ट आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है यार, डिफरेंट एंटीनास जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे आजकल जो हम डिश टीवी यूज़ कर रहे हैं, वीडियोकॉन का टीवी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे जो जितने भी हमारे ये एंटीनास हैं, ये किससे कनेक्टेड है? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। या फिर यहाँ पे सर्च मार लेते हैं इसको भी, ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम वॉकी टॉकी यूज करते हैं घर में, वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी चलता है। टेलीविजन हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी से चल रहा है। GPS, वाईफाई, 4G, ये सब रेडियो फ्रीक्वेंसी पे रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारे डिवाइस क्या है, वायरलेस से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इवन हमारा जो वाईफाई राउटर होता है घर में, वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी ही यूज करता है, ठीक है। तो मीडिया के बेस पे हमने ये बात कर ली। इससे पहले हमने लैन वैन पैन समझ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, टाइप ऑफ टोपोलॉजीज, ठीक है। टाइप ऑफ टोपोलॉजी, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज, राइट। मतलब एक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए वी कैन कनेक्ट a particular network in a different ways, right? But most of the time we are using only star topology in case of LAN, right? Because before we were using bus, ring and mesh, but the updated one is star topology, right? So bus topology की बात कर लेते हैं। bus topology, just go on the Google and search bus topology. That's the easiest way to understand, right? One more thing, you can use that book to understand the bus topology. Maybe it's not here, right? You can search on the Google and find this image, or you can use any image, right? तो bus topology की बात कर लेते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता था? बस टोपोलॉजी का जो फंडा था उसमें क्या था, एक सिंगल केबल होता था। वी ओनली हैव वन सिंगल केबल एज अ बैकबोन, राइट, एंड वी हैव डिफरेंट डिवाइसेस 1, 2, 3, 4 and 5. The disadvantage of this topology is
only one people can send data at a time, right? सिर्फ एक बार में एक ही पीसी दूसरे पीसी को डेटा भेज सकता है। अगर सेम टाइम पे कोई दूसरा पीसी अगर डेटा भेजता है तो आपस में डेटा का क्या हो जाता था, कॉलिजन, राइट? मतलब डेटा विल बी कोलाइड, और डेटा कोलाइड होने से क्या होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ये वाला जो पीसी है, इसने हेलो लिख के भेजा इस पीसी को, राइट? अब ये डेटा ट्रेवल हुआ ऐसे और इस वायर में जा रहा है ऐसे, और सेम टाइम पे क्या करा, इस पीसी ने भी क्या करा, इस पीसी ने इस पीसी को एक दूसरा डेटा पैकेट भेजा, ठीक है? सेम टाइम पे जब ये वायर ऑलरेडी यूज्ड है उस टाइम पे भेजा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये वायर ऑलरेडी यूज था और सेम टाइम पे इसने भी डेटा भेज दिया। तो इस केस में क्या हुआ, ये डेटा का क्लैश हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, डेटा हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। उस टाइम पे क्या होता था, जब कोई दो पीसी आपस में बात कर रहे हैं तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता था, राइट? हम ये सब चीज़ें धीरे धीरे आगे कवर करेंगे, आपको और समझ में आता जाएगा इसमें जैसे जैसे हम एंटर होते जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या होता था, डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता था, ना ये पीसी इसको भेज पाता था, ना ये पीसी इसको भेज पाता था, ठीक है? तो बस टोपोलॉजी का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, इसलिए इस टोपोलॉजी को टाइम के साथ में खत्म कर दिया गया, राइट? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टोपोलॉजी विच इज स्टार, ठीक है? फर्स्ट बस सिंगल मीडिया, we are using single media coaxial cable we were using in bus topology, right? And tapping signal from media for system connectivity by using a T connector. हम यहाँ पे जो डिवाइसेस को जो कनेक्ट करने के लिए हम जो यूज करते थे that was called T connector, ठीक है? जिनसे ये कनेक्टेड है पीसी, यहाँ पे एक T कनेक्टर होता था, उससे कनेक्टेड रहते थे, ठीक है? नाउ स्टार टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या था, ठीक है? स्टार टोपोलॉजी का बिल्कुल सिंपल है। स्टार टोपोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं है, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है, ठीक है? स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक स्विच है, ठीक है? इसके साथ क्या होता है, एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, ऐसे ये कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है? इसको भी सर्च मार लेते हैं इंटरनेट पे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, वी हैव वन डिवाइस विच इज कनेक्टिंग ईच एंड एवरी कंप्यूटर, राइट? दिस इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी, ठीक है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अब इन द मिडिल वी कैन यूज हब, वी कैन ऑल्सो यूज स्विच, राइट? सो हब वी वर यूजिंग अराउंड, मतलब हब जो है वो अब नहीं आता मार्केट में, हब एब्सोल्यूट हो चुका है टोटली। वी आर यूजिंग स्विच इंस्टेड ऑफ एनी हब, राइट? वायरलेस होता है वायर, यार ये जो हब और जो स्विच होते हैं ये वायरलेस भी आते हैं और वायर्ड भी आते हैं, ठीक है? वायरलेस का एग्जांपल दे देता हूँ। वायरलेस का एग्जांपल जैसे आप घर में यूज करते हो, उसको डिवाइस को बोलते हैं एक्सेस पॉइंट है, उस डिवाइस को बोलते हैं एक्सेस पॉइंट, राइट? बट दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्विच, ठीक है? दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्विच, ठीक है? वायरलेस स्विच भी आते हैं, बट आपको पता ही है कि वायरलेस मीडिया से ज़्यादा फास्टर कौन सा है, केबल मीडिया, राइट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम एवरीवन यूज केबल मीडिया। वायरलेस मीडिया हम जब यूज़ करते हैं जब हम कहीं ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे हम कनेक्ट नहीं हो सकते किसी वायर्ड नेटवर्क से, ठीक है? So now let's move to next one. इसको पढ़ लेते हैं, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस फॉर कनेक्टिंग ऑल डिवाइसेस। एग्जांपल है स्विच, हब, ठीक है? स्विच जो होते हैं वो प्लग एंड प्ले होते हैं। जस्ट आप अपना लैपटॉप प्लग करो, आपको एक ऑटोमेटिक आईपी जनरेट हो जाएगा, उस आईपी से आप
और भी डिफरेंट डिवाइसेस से और इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता था, रिंग टोपोलॉजी यहाँ सर्च मार लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता था, एक होता था पहले सिंगल रिंग वाला। ठीक है, इसमें क्या होता था, हम कंप्यूटर को वन बाय वन कनेक्ट कर देते थे। हर कंप्यूटर में 2 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते थे, मतलब 2 पोर्ट होते थे, एक से हम खुद कनेक्ट होते थे और एक से नेक्स्ट कंप्यूटर कनेक्ट होता था। ठीक है, तो ये रिंग टोपोलॉजी मार्केट में लाने वाला था IBM। ठीक है, IBM इसको लेके आया था। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें भी सेम प्रॉब्लम वही वाली थी जो प्रॉब्लम हमें वहाँ फेस हो रही थी बस टोपोलॉजी में। इसमें भी हम कोएक्सियल केबल यूज कर रहे थे। इसमें क्या होता था, जब ऑलरेडी पैकेट जब सेंड हो रहा है तो उस टाइम पे कोई दूसरा पीसी इनिशिएट नहीं कर सकता था। ठीक है, जब ये केबल फ्री होगी उसके बाद ही नेक्स्ट पीसी डेटा सेंड कर पाएगा, अदरवाइज डेटा सेंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है, उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसके बाद इन्होंने ऐसा करा कि सिंगल रिंग की बजाय इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने ड्यूल रिंग बना दी। ठीक है, इस तरह की। सो नाउ इन्होंने ड्यूल रिंग बना करके ट्राई किया। ड्रॉबैक्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी, ओके, वी विल कवर लेटर। तो जब इन्होंने डबल रिंग वाली टोपोलॉजी बना दी, इसके अंदर क्या होता था, एक 64 बाइट का एक टोकन होता था। ठीक है, एक टोकन होता था ऐसा। ठीक है, वो टोकन क्या करता था, वो रोटेट करता रहता था, पूरे रिंग के अंदर रोटेट करता था। और जैसे जिसको डेटा सेंड करना है वो उस टोकन में वो डेटा चले जाता था। और वो टोकन फॉर एग्जांपल यहाँ से चला और यहाँ जाके इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इसको ड्रॉप कर दिया, फिर टोकन ब्लैंक हो गया, फिर यहाँ से टोकन ने डेटा लिया, फिर वापस चला, फिर इसको ड्रॉप कर दिया, फिर वापस ब्लैंक हो गया। ठीक है, इस तरह से ये जो काम करता था। ठीक है, आजकल ये सब खत्म हो चुका है, ये सब हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बट ये नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। ठीक है, मैश में क्या होता है, ऑल सिस्टम कनेक्टेड ऑल सिस्टम। मैश में क्या होता है, मैश टोपोलॉजी। ठीक है, मैश में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 पीसी हैं। ठीक है, तो पांचों जो कनेक्शन है, पांचों जो डिवाइसेस हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, मीन्स एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी डिवाइस, आई कैन से लाइक दैट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है और ये इससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, सो एवरी डिवाइस हैज 4 डिफरेंट LAN केबल टू कनेक्ट विद। ठीक है, इसके अलावा ये आपस में कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। ठीक है, इसको भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गॉन। ठीक है, ये भी उसी का एग्जाम्पल है सेम। What is topology? Bro, topology is called the network design. I can say मतलब किस वे में हम नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, टोपोलॉजी एक डायग्राम है या डिजाइन कह सकते हो कि डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, इसको टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, बात आती है अब क्या पढ़ा हमने स्टार्टिंग से इसको देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, पढ़ लिया नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं, मतलब वाइड बर्ड कितने रेंज में होते हैं, मतलब 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। ठीक है, सारे वे पढ़ लिए। किस तरह से कनेक्ट करना होता है, या तो वायर्ड कर सकते हैं या वायरलेस कर सकते हैं, 2 मीडिया में। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हम किस डिज़ाइन में नेटवर्क को, किस डिज़ाइन में हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा डिज़ाइन हम फॉलो करें। ठीक है,
मैश टोपोलॉजी यूज नहीं होती अब, मैश टोपोलॉजी अब यूज नहीं होती। ये चैट में मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, विच वन इज मोस्टली यूज करेंटली, या स्टार टोपोलॉजी यूज होती है, मोस्टली स्टार यूज होती है, मैंने अभी बताया था। और मैश यूज नहीं होती। इतनी सारी केबल्स कोई भी नहीं बिगाड़ेगा आज के ज़माने में, ठीक है। उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि। नेक्स्ट पे बात आती है, हमने केबल टाइप पढ़ ली और इसके बाद टोपोलॉजी डिज़ाइंस पढ़ लिए कि किस तरह का डिज़ाइन हो सकता है नेटवर्क का, ठीक है। अब बात आती है कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात आती है तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, वी हैव 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है, मतलब 3 टाइप हैं इसके, 3 तरीके जो कंप्यूटर नेटवर्किंग हमारी बताती है, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, तो पहला पॉइंट है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट मतलब जैसे सिंपल इसमें सामने ही लिखा हुआ है 1 to 1, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला, ये एग्जांपल दिखाता है कि एक यूनिकास्ट ट्रैफिक कैसे सेंड होता है, मतलब यूनिकास्ट पैकेट कैसे सेंड होता है। फॉर एग्जांपल इधर यहाँ पे हमारा पूरा सारे जितने भी मेरे लिसनर्स हैं इन सबका ग्रुप बैठा हुआ है, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ये मैं हूँ और सब कुछ, ये यहाँ पे पूरा ग्रुप है, ठीक है। उसमें सिर्फ एक आदमी मेरे से बात कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट, ठीक है। यहाँ पे हम किससे कनेक्टेड हैं, यहाँ पे हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यूनिकास्ट मतलब 1 to 1, ओनली 1 person स्पीकिंग विद 1 person, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूनिकास्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्टीकास्ट, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में क्या होता है, मोर देन 1 people, मतलब एक जने से ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोगों से आप बात कर रहे हो। एक से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 2, ठीक है। मैक्सिमम 2 और मैक्सिमम 2 आई कैन से, क्योंकि मैक्सिमम जैसे 3 होगा, 3 होते ही ये क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। या 3 से अबव, जो 2 से अबव जो भी होगा वो सारा ब्रॉडकास्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो मोर देन 1 इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग, ठीक है, मल्टीकास्ट। नाउ लेट्स मूव टू मल्टीकास्ट मीन्स 1 to many, ठीक है। नाउ ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट 1 to all. The one of the best example is I am the host for this meeting, right, and everyone is listening to me. So I am broadcasting this class to you with the help of this internet, or I can say the network, right, because we all are connected with our internet service provider, and we are using one and particular application to connect me and each other, right? Okay, another question, which one is mostly used currently? Yeah, it depends upon your requirement. I cannot say कि ब्रॉडकास्ट यूज होता है, मल्टीकास्ट होता है, यार ये तीनों यूज हो रहे हैं, ठीक है। सम टाइम वी हैव टू सेंड, मतलब कभी हमें सिर्फ एक ही आदमी से बात करनी है, कभी हमें 2 जनों से बात करनी है, कभी हमें पूरे ग्रुप से बात करनी है, ठीक है। सेम इन नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में भी ऐसा ही है। नेटवर्किंग में भी एक डिवाइस 10 डिवाइस से भी बात करना चाहता है, एक डिवाइस सॉरी टू इंटरप्टिंग। यस यस मनीष, वो मेरा क्वेश्चन पुराना था जो आपने रीड किया अभी, Okay. 816 का क्वेश्चन था वो। इधर मैंने एक्चुअली रेज हैंड किया था, शायद वो आपने ना नोट नहीं किया। ओके मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसमें एक फ्लोर के ऊपर अराउंड 50 पीपल बैठे हैं। अब जब वो 50 में से 20 को अपना मैसेज भेज रहा है, तो वो मल्टीकास्ट में आएगा या ब्रॉडकास्ट में आएगा? क्योंकि ब्रॉडकास्ट का तो हमारा एक जो जेनेरिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितने भी नेटवर्क के अंदर है सबको जाएगा। तो मल्टीकास्ट में जैसे आपने कहा कि हम अगर 2 से ऊपर जाते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट में आ जाता है। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज था क्योंकि मैंने थोड़ी सी सर्चिंग की थी, मतलब गूगल के ऊपर। वहाँ पे जो उसने मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था वो उसने ये कहा था कि एक नेटवर्क में जितने पीपल हैं, अगर हम सबको भेजते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट में है, अगर हम उन पीपल में से कुछ को भेजते हैं तो वो मल्टीकास्ट में है। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, तो काइंडली थोड़ा सा इसको नॉमिनेट कर देंगे।
नहीं, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। आप म्यूट कर लो अपने माइक को, ठीक है? मेरा म्यूट है या किसी और का ओपन है? ओके, तो मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ यार, ठीक है? ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहा था सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि सही हो हमारे गया। पास टोटल 3 डिवाइसेस ही हैं, ठीक है? इस एग्जांपल को अगर मैं लेता हूँ तो जैसे जो आपने बताया वो भी एकदम सही है, ठीक है? अगर 50 में से 20 जनों को कम्युनिकेट करना है तो डेफिनेटली सेम वही प्रोसेस ओके, होगा। वो इसलिए बस मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, वो मैं हाँ एग्जांपल को लेकर कंफ्यूज हो गया था। हाँ, नहीं, कई बार रियल टाइम नेटवर्क में क्या होता है कि हमारे पास कभी कभी हमें मल्टीकास्टिंग भी करवानी होती है। मतलब कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे बने हुए हैं राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर, जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो सिर्फ यूनिकास्टिंग यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मल्टीकास्ट यूज करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है? इवन सॉफ्टवेयर भी होते हैं और हार्डवेयर भी होते हैं, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, तीनों चीज करवाने के लिए, ठीक है? मनीष, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ हाँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अगर हम एक को भी छोड़ देते हैं तो वो मल्टीकास्टिंग में चला आता है। हाँ, यू कैन से लाइक दैट। ओके ओके, थैंक यू। वो उसी बात को उल्टा कहने वाली बात है, बट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है इंटरकनेक्शन डिवाइसेस की, कि हम कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो हम कनेक्टिविटी के लिए यूज में लेते हैं, बेसिक नेटवर्किंग में या फिर नेटवर्किंग में, कह सकता हूँ। ओवरऑल नेटवर्क की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ओवरऑल बहुत कुछ होता है जब एक रियल टाइम नेटवर्क में आप जाओगे तो, क्योंकि सिर्फ ये 4 या 5 डिवाइसेस नहीं होते एक रियल टाइम नेटवर्क में, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो हम डिवाइस, पहले आता था हब, ठीक है? पहले हम लोग हब यूज करते थे, तो यहाँ से शुरू करते हैं। हब की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर यूजर बस, ठीक है? अब ये हब बंद हो चुके हैं, ठीक है? इनके अंदर भी वही सेम प्रॉब्लम थी, एक यूजर सिर्फ एक यूजर से ही बात कर पाता था और किसी से नहीं कर पाता था, ठीक है? तो ये हब का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक वन कॉलिजन डोमेन था, ठीक है? वही अंदर जैसे बस टोपोलॉजी वाली बात करी थी, वैसे ही हब के अंदर क्या होता था, हब भी ऐसे ही होता था सेम। इसको मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये हब है, इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर भी सिंगल केबल होती थी, और सिंगल केबल के अंदर सिंगल केबल हब डिवाइस था एक, उसके अंदर लगी रहती थी, और उससे सारे पीसी कनेक्टेड रहते थे। फॉर एग्जांपल ये पीसी हैं, ये पीसी हैं, ठीक है? ये सारे कनेक्टेड रहते थे, बट इसका भी ड्रॉबैक वही था कि एक वन टाइम में सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही आदमी इस लाइन को, इस पर्टिकुलर लाइन को यूज कर सकता है, ठीक है? सेम वही था। हब के बारे में सर्च मार सकते हो अब यहाँ पे भी, व्हाट इज हब? Hi Manish, Rohit here. Yes, Rohit. Yeah, can you please explain a little bit about the collision domain? Yes, for sure. Yeah, thank you. गाइस, कॉलिजन डोमेन का मतलब क्या होता है, ठीक है? यार डेफिनेशन से तो नहीं बता सकता मैं एकदम एग्जैक्ट, ठीक है? बट इतना, क्योंकि बिकॉज आई ऑल्सो हैव नहीं एग्जांपल चलेगा, नो इशू, एग्जांपल चलेगा। हाँ, एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में क्या होता है एक्चुअली मनीष, मुझे क्या जानना है कि अगर सिंगल कोलिजन डोमेन और मल्टी कोलिजन डोमेन में आके क्यों बेनिफिट है मुझे मल्टी कोलिजन डोमेन से? अच्छा, ठीक है, बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है, सिंगल कोलिजन डोमेन में क्या होता है? सिंगल कोलिजन डोमेन मतलब फॉर एग्जांपल ये एक डोमेन है, ठीक है?
ये एक डोमेन है। अब इस डोमेन को मैं कैसे बताऊं, कोई पिक्चर सर्च कर लेते हैं जिससे इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल ही हमारे पास हब है। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा नेटवर्क है जिसमें क्या है, एक दो पीसी हैं और एक सर्वर है, और हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है बीच में, हब। ठीक है, वन कॉलिजन डोमेन और वन ब्रॉडकास्ट डोमेन इसके अंदर, हब के अंदर होता है। अब वो कैसे होता है कि एक बार में सिर्फ एक पोर्ट से ही डेटा सेंड होगा। ठीक है, सिर्फ एक बार में एक पोर्ट ही यूज होगा। यही इसका एग्जांपल है कि ये सिर्फ सिंगल कॉलिजन डोमेन है, सिर्फ सिंगल पोर्ट यूज हो रहा है। इतने, अगर ये फॉर एग्जांपल 8 पोर्ट का ये हब है, तो 8 में से सिर्फ ओनली वन पोर्ट वी आर गोइंग टू यूज एट अ टाइम। ठीक है, अब ये कॉलिजन डोमेन को और बेटर मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कॉलिजन डोमेन का लिए एग्जाम्पल इसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि सेम टाइम पे हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनली क्या होता है, इंटरनली ये जितने भी डिवाइसेस हैं इंटरनली जो कनेक्टेड होते हैं वो सिंगल केबल से, सिंगल वायर से कनेक्टेड होते हैं। ये हब के अंदर एक सिंगल वायर होता है और सिंगल, मैं कह सकता हूँ एक सिंगल चिप होती है। इस सिंगल चिप के थ्रू ये सारे जो हैं पीसीज जो हैं कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको सिंगल कॉलिजन डोमेन कहूँगा। अब मल्टीपल कॉलिजन डोमेन का एग्जांपल है स्विच। स्विच में क्या होता है, स्विच के केस में क्या होता है, स्विच के केस में फॉर एग्जांपल ये एक पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी एक पोर्ट है। यहाँ पे क्या होता है, हर पोर्ट, एवरी पोर्ट इज अ कॉलिजन डोमेन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 7 8, so total we have 8 ports, right? So every port act as a collision domain। अब इसमें क्या होता है, स्विच में क्या बेसिक स्विच में रन कैसे करता है, ब्रिज हमारा इधर रह गया है, लेकिन हम स्विच की बात कर लेते हैं पहले। यार हब को रिप्लेस किया था स्विच ने। ठीक है, हब में क्या हो रहा था, वही कॉलिजन हो रहा था, एक बार में एक ही आदमी डेटा ट्रांसमिट कर पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमने स्विच को यूज करना पड़ा। अब स्विच में क्या होता था, स्विच के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्विच का क्या होता था, हर एक पोर्ट अपना खुद ही कॉलिजन डोमेन का काम करता था। इसमें क्या होता था, कॉलिजन नहीं होता था। इसमें क्या था कि जो हमारा ये स्विच था, स्विच भी अब दो तरह के आते हैं, एक तो मैनेजेबल आता है और एक नॉन मैनेजेबल आता है। ठीक है, एक मैनेजेबल है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, ईच एंड एवरी पोर्ट को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, नो शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बंद भी कर सकते हैं, ऑन ऑफ सब कुछ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मैनेजेबल स्विच। और एक आता है अनमैनेजेबल स्विच। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अनमैनेजेबल स्विच की। तो इसमें क्या होता था कि अगर फॉर एग्जांपल, अगर जैसे ये इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, ये पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 और ये पोर्ट 8। ठीक है, पोर्ट 1 और पोर्ट 8 आपस में बात करना चाहते हैं। ठीक है, पोर्ट 1 और पोर्ट 8 आपस में बात करना चाहते हैं, तो ये सेपरेटली बात कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्ट इस पोर्ट से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये सेपरेटली बात कर सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल हो गया, ठीक है, इसकी बात करते हैं।
स्विच का जो हम अगर मैं स्विच की बात करूँ तो स्विच का जो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है गाइस, यार चैट मैसेज मत लिखो, मैं आपको एंड में एक सेशन दूंगा, उसके अंदर मैं जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो स्विच की बात कर रहे थे हम, ठीक है। स्विच में क्या बात कर रहे थे, स्विच का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो क्या कहता है, पहले स्लाइड पे चलते हैं। स्विच क्या करता है, एक हार्डवेयर बेस्ड डिसीजन लेता है, ठीक है, और मोर नंबर ऑफ पोर्ट्स एज कंपेयर टू हब। स्विच के अंदर ज़्यादा पोर्ट आते हैं, स्विच आता है 64 पोर्ट का भी स्विच आता है, ठीक है। हब जो आता था वो मैक्सिमम 8, 16 और 32 पोर्ट से ज़्यादा का नहीं आता था हब, ठीक है। और स्विच हमारा जो है 64 पोर्ट तक भी आ रहा है, ठीक है। सो नाउ स्विच क्या करता है, स्विच का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, स्विच का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या कहता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा सेंड करूंगा पोर्ट 1 से, ठीक है, पोर्ट 1 से कोई भी डेटा सेंड होगा तो वो किसके पास जाएगा, सबके पास जाएगा, ठीक है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि डिवाइस के जो मैक एड्रेस होते हैं, हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके दो एड्रेसेस होते हैं, एक आईपी एड्रेस होता है और एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप स्विच को एक स्विच से कनेक्ट होते हो तो स्विच हमारा क्या करता है, एक मैक टेबल जनरेट करता है। हम ये धीरे धीरे आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो स्विच क्या करता है, एक मैक टेबल मेंटेन करता है, उस मैक टेबल के अकॉर्डिंग डेटा को फॉरवर्ड करता है। उसको पता होता है कि ये जो PC1 है, हमारा जो PC1 है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा ये PC1 है, ये वाला, ठीक है, PC1। इसके अंदर एक मैक एड्रेस होता है, मैं आपको दिखाया था मैक एड्रेस कैसे देखते हो अपने डिवाइस का। सबसे बेस्ट तरीका है, स्टार्ट मेन्यू में जाओ, CMD टाइप करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोल गया, इसके बाद करो, एक कमांड होती है गेट मैक, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, इससे क्या होगा, आपके जो लैपटॉप या मशीन में जितने भी एडेप्टर्स हैं, ठीक है, जो नेटवर्क कनेक्ट करने के काम आते हैं, ठीक है, उनका ये मैक एड्रेस दिखाएगा। तो ये जो डिफॉल्ट फिजिकल एड्रेस भी कह सकते हैं इसको, एक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है, दूसरी फॉर्म में। तो ये मैक एड्रेस होता है, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे कि क्या होता है ये, ठीक है। तो हमारे जो स्विच क्या करता है, इस मैक एड्रेस टेबल को इस पोर्ट के साथ बाइंड कर लेता है, जो हमारा ये पोर्ट है इसके साथ बाइंड कर लेता है कि इस मैक एड्रेस से मेरे पास ये मैक एड्रेस का डिवाइस हमारे पोर्ट नंबर 1 पे है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ तो फिर ज़्यादा सही रहेगा, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 00-01, ठीक है। नेक्स्ट है C792, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं C792। तो इसको क्या करता है, ये इस पोर्ट के साथ बाइंड कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर 8 है, ये पोर्ट के साथ बाइंड कर लेता है इस मैक एड्रेस को और एक टेबल मेंटेन कर लेता है अपने पास में, ठीक है। और ये किस पे कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 1 पे, ठीक है। पोर्ट नंबर 1 पे कौन सा कनेक्टेड है, 001। अब क्या होता है, जब PC8 को जब भी डेटा भेजेगा तो उस टेबल को ये स्विच चेक करेगा और वो चेक करेगा कि ये मेरे किस पोर्ट पे कनेक्टेड है और उस पर वो डेटा को थ्रू कर देगा, ठीक है। तो ये स्विच जो है हमारा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इसमें अच्छी बात यह है कि हर पोर्ट एक कॉलिजन डोमेन का काम करता है। मतलब हर पोर्ट यहाँ पे जाते हैं, एक इसका बेस्ट डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ मैं आपको जिससे और इजीली समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पोर्ट है, ठीक है, इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं हम, सेकंड पोर्ट, थर्ड पोर्ट, फोर्थ, ठीक है, इतना से ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। 4 पोर्ट है मेरे पास,
कॉलिजन हब में क्या होता था, हब में हमारे पास क्या था, सिर्फ एक बैकग्राउंड में एक सिंगल केबल थी, ठीक है, हब में एक सिंगल केबल थी। बट स्विच के केस में क्या हुआ, स्विच के केस में अच्छी बात यह है कि हर पोर्ट, जो जैसे ये पोर्ट है, ठीक है, ये पोर्ट क्या है, ये पोर्ट इससे भी कनेक्टेड है, ये पोर्ट इससे भी कनेक्टेड है, और ये पोर्ट इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस पोर्ट, ठीक है, ये पोर्ट इससे भी कनेक्टेड है, ये पोर्ट इससे भी कनेक्टेड है, ये पोर्ट इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसी बात आती है इस पोर्ट के लिए, ये पोर्ट इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, और ये इससे भी कनेक्टेड है, और सेम गोज फॉर लास्ट वाले पोर्ट, ये हमारा ये वाला पोर्ट जो है, ठीक है, ये पोर्ट भी क्या है, आपस में ये एक मैश कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, मैश वाले तरीके से ये आपस में चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसमें अच्छी बात क्या होती थी, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे को डेटा ट्रैफिक सेंड करना है, ठीक है, ये स्विच के अंदर जो इंटरनल वर्किंग है वो है ये स्विच की। अब मेरे को डेटा ट्रैफिक सेंड करना है इससे इसके पास, ठीक है, इधर से इधर भेजना है। तो क्या होता था, अब ये ऑलरेडी यहाँ से जा रहा है डेटा और ये यहाँ से ट्रेवल कर रहा है इसके पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी क्या होता है, सडनली सेम टाइम पे क्या होता है, इसको भी डेटा भेजना है इसको। तो अब क्या है, यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज केबल तो है नहीं। अगर सेंट्रलाइज केबल होता तो वो वहाँ जाके क्या होता, वो केबल ऑलरेडी यूज्ड होती और वो केबल जाके ब्रेक हो जाती। इस केस में क्या होता है, अब इसको जैसे डेटा सेंड करना है, इस पीसी को डेटा सेंड करना है इस पीसी को, ठीक है, मतलब 1 को सेंड करना है, थर्ड नंबर वाला 1 को सेंड करना चाहता है, तो थर्ड वाला क्या करेगा, थर्ड वाले इस डेटा को सिंपली, क्योंकि उसका अपना सेपरेट कनेक्शन है ऑलरेडी, ठीक है, सेपरेट ऑलरेडी हमने मतलब आईसी के अंदर और हमारी जो चिप होती है उसके अंदर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है कि ये सेपरेट्स होते हैं, ठीक है। तो उसको उसका जब सेपरेट कनेक्शन है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ जाएगा और डायरेक्ट डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो अपना मैक एड्रेस बता के, ये जो भी पीछे की जो चीज़ें होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, तो बता करके, और ये इस तरीके से अपना डेटा फ्लो हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा जो फर्स्ट कनेक्शन जो बना हुआ था 4th नंबर के पीसी से, वो भी इम्पैक्ट नहीं होगा, और जो 3rd नंबर का पीसी है वो भी ट्रांसमिट कर पाएगा अपना डेटा, सेंडिंग और रिसीविंग कर पाएगा एट द सेम टाइम, ठीक है। तो स्विच के जो पोर्ट्स हैं, ये मैं स्विच की बात कर रहा था, ठीक है, किसी डेस्कटॉप की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। ये पूरा एक स्विच है, बॉक्स कह सकता हूँ, स्विच बॉक्स है ये हमारा, ठीक है, क्योंकि हर पोर्ट पे एक डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड है। इस तरह से मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। स्विच समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हम मोस्टली नाउडेज हम यूज़ करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। अब बात आती है इसकी थ्योरेटिकल पार्ट की। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको जैसा बताया, आपको मैंने एक रेफरेंस बुक दे रखी है और इतने कम टाइम में मैं बहुत कुछ कवर नहीं कर सकता, ठीक है। उस बुक को थोड़ा सा आपको थोड़ी सेल्फ स्टडी करनी होगी स्विच के ऊपर, ठीक है, और हब के ऊपर, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है राउटर की। राउटर क्या करता है, राउटर कनेक्ट टू डिफरेंट लैन, ठीक है। राउटर हमारी हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है, और ये भी एक लाइन है, सेम बिल्डिंग में, यहाँ पे लिख देते हैं लैन, और ये हमारे पास लैन है, ठीक है। बट ये जो लैन है ना, ये दोनों लाइन कितने किलोमीटर की रेंज पे हैं, 5 किलोमीटर की रेंज पे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, बीच में हम एक डिवाइस बना लेते हैं यहाँ पे राउटर, इसको हम लिख लेते हैं राउटर, ठीक है। 2 डिफरेंट लैन है और आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें ये चीज़ शायद गलत हो सकती है क्योंकि 2 डिफरेंट लैन और वैन दोनों को ये हमारा जो राउटर है ये करवा सकता है कम्युनिकेशन।
मैक एड्रेस हम लोग कवर करेंगे अभी, मैक एड्रेस हम आगे जाके कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैक एड्रेस के लिए टेंशन मत लो बिल्कुल भी। नेक्स्ट बात आती है वापस से राउटर की। तो राउटर क्या होता है, एक ये एक लेयर 3 डिवाइस है, ठीक है। हम लेयर OSI लेयर सभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लेयर 3 डिवाइस है, और जो हमारे स्विच होता है वो लेयर 2 डिवाइस होता है, ठीक है। बुक्स में आप पढ़ सकते हो, और ओवरऑल मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो लेयर 3 डिवाइस है। लेयर 3 डिवाइस काम कैसे करता है, वो क्या करता है, एक IP के बेस पे डिसीजन लेता है। अब IP क्या होता है, ठीक है। जैसे हम सब के पास, हमारे पास एक यूनिक मोबाइल नंबर है, वो यूनिक मोबाइल नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिक है, ठीक है। मतलब वो मोबाइल नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी यूज नहीं कर रहा है। ऐसे ही क्या होता है, कंप्यूटर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है एक अपने नेटवर्क में, ठीक है। वो भी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। उस यूनिक आइडेंटिटी को कोई भी यूज नहीं कर सकता। ऐसे एक सेपरेट IP एड्रेस, एक यूनिक IP एड्रेस आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपकी जो कंपनी है, एयरटेल, BSNL और XYZ, ये लोग आपको एक स्पेसिफिक IP एड्रेस देते हैं। उस IP एड्रेस को आप यूज करके आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होते हो। वो एक यूनिक IP एड्रेस होता है, उसको कोई भी यूज नहीं कर रहा होता उस टाइम पे जब आप यूज कर रहे होते हो, ठीक है। वो सारा मॉडेम आपका काम करता रहता है बैकग्राउंड में। डन। तो राउटर क्या करता है, राउटर हमें 2 डिफरेंट लैन के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है, ठीक है। राउटर ऑल्सो कनेक्ट अस टू वैन, ठीक है। राउटर लैन और वैन के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, 2 लैन के बीच में भी कम्युनिकेशन करवा देता है, ठीक है। तो जो हम घर में जो मॉडेम यूज करते हैं उसको हम बोलते राउटर हैं, बट वो एग्जैक्टली राउटर नहीं है, ठीक है। राउटर बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है। वो एक राउटर नहीं है, वो है मॉडेम, ठीक है। मॉडेम काम क्या कर रहा है, मॉडेम वो एक पार्शियल राउटर कह सकता हूँ, 100% राउटर नहीं है, बट दैट इज अ पार्शियल राउटर, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा राउटर का भी काम करता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट काम मॉडेम का क्या काम है, मॉडेम एग्जैक्टली आपका जो भी, फॉर एग्जांपल मॉडेम की बात करते हैं। मॉडेम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मॉडेम है आपका, ठीक है, और ये आपका PC है इधर, ये PC है और ये मॉडेम है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये आपका इंटरनेट है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरनेट, ठीक है, और ये है हमारा PC, और हम इस मॉडेम के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे google.com का सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पे जाकर google.com का एक सर्वर है, वो भी किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से, ठीक है। अब आपको इस PC से पिंग करना है, आपको इस PC से मतलब google.com लिखना है ब्राउजर पे जाके, ठीक है। तो क्या करोगे, ये मॉडेम क्या काम करेगा, यहाँ पे मॉडेम है, और ये मॉडेम यहाँ पे जो इंटरनेट, ये जो इंटरनेट वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे राउटर्स हैं, अलग अलग डिफरेंट साइट्स हैं, वेंडर्स हैं, और जैसे एयरटेल है, BSNL है, ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं ग्रुप्स में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इंडिया में जैसे यहाँ पे एयरटेल यूज कर रहे हैं या XYZ कोई भी सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, तो हम सेम वहाँ पर भी US में भी एक डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर होगा, जैसे ऑरेंज है, O2 है, ऐसे बहुत सारी और कंपनीज हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे होगा जिससे वो google.com का सर्वर कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ के ट्रांसमिशन की बात करते हैं। जब हमारा जो PC होता है वो कैसे सेंड करेगा, PC में क्या है, हमने एक ब्राउजर में एक विंडो ओपन करी हुई है, उस विंडो से हम जाके टाइप करेंगे google.com। जैसे ही हम विंडो में टाइप करेंगे google.com, उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट एक मॉडेम की फंक्शनैलिटी में यहाँ पे बता देता हूँ कैसे होगा। मॉडेम क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, ठीक है। तो उस वायर के थ्रू होकर के वो मॉडेम के पास जाती है। मॉडेम के पास जैसे ही वो जाती है, मॉडेम क्या करता है, उसको पढ़ता है, और क्या करता है, उसको सीधा वो इंटरनेट वाली लाइन पे थ्रू कर देता है, ठीक है। इंटरनेट वाली लाइन पे थ्रू कर देता है। अब इंटरनेट यहाँ से यहाँ के बीच में जो डेटा ट्रेवल करता है, कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के लिए हम बोलते हैं, कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल बिट्स को समझता है, सिर्फ 0101 11001, सिर्फ इस लैंग्वेज को समझता है, डिजिटल वर्ड्स को, ठीक है। बट जो हमारा मॉडेम क्या करता है, मॉडेम का काम ही है, मॉडेम क्या करता है, जो डिजिटल वर्ड्स है ना,
इनको ये कन्वर्ट करता है एक वेव्स में, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे आपके घर में लैंडलाइन पहले होते थे, तो लैंडलाइन जब होते थे तो उसमें क्या होता था, जैसे आप फोन को पिक करते थे तो एक रिंग आ रही होती, रेगुलर उसमें से एक रिंग आ रही होती थी, ठीक है। वो क्या थी, वो वेव्स थी, ठीक है। वो ही वेव्स डिसाइड करती हैं कि 0 1, ठीक है। तो मॉडेम क्या करता है, 0 के लिए एक अलग वेव, एक अलग आवाज है, और 1 जब बोलना है, जब मॉडेम को, जब सामने वाले डिवाइस को जब बताना है, तो मॉडेम अलग आवाज निकालेगा, ठीक है। तो 0 1 0 1 ऐसे करके क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कन्वर्ट कर देता है 0 1 जो बिट्स होती हैं, ठीक है। ये जो बिट्स हैं इनको वो किस में कर देता है, कन्वर्ट इनमें, ऐसी वेव्स में, और वो उनको वायर में डाल देता है, ठीक है। वायर के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक और मॉडेम लगा रहता है। जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है, उनके पास एक मॉडेम और होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एक और मॉडेम होता है उनके पास में। वो मॉडेम क्या करता है, वो उनको सुनता है, उन वेव्स को सुनता है, वो वेव्स रीड करता है, और वो वेव्स रीड करके वापस से यहाँ पे उनको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। और वो डिजिटल वैल्यू क्या होती है, जो हमने यहाँ से सेंड करी होती है, ठीक है। वो डिजिटल वैल्यू यहाँ आ जाती है इस राउटर के पास। अब अंदर क्या होता है, अब जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आपस में राउटर्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू कनेक्टेड हैं, उनके थ्रू होते हुए वो पहुंचता है फाइनली गूगल के सर्वर पे, ठीक है। फाइनली जब गूगल के सर्वर पे जब वो पहुंचता है, तो गूगल का सर्वर क्या करता है, उसको एक रिप्लाई जनरेट करता है। उस रिप्लाई पैकेट्स में क्या क्या होता है, उन रिप्लाई पैकेट्स में यहाँ से ये आता है डिजिटल फॉर्मेट में, फिर यहाँ पे आके वेव फॉर्मेट में चेंज होता है। फिर हमारा मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। ये जो ऐसे वाले जो सिग्नल्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। और 0 1 0 1 को हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। मॉडेम क्या करता है, एनालॉग को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में, और जैसे ही मॉडेम के पास रिक्वेस्ट आती है, मॉडेम उसको पीसी को भेजता है, पीसी के पास रिसीव हुआ, पीसी उसको जब ये इन बिट्स को देखता है कि भाई ये मेरे पास बिट्स, अब जो रिप्लाई जो मेरे पास आया है उनमें बिट्स में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, उन बिट्स में मेरे पास आया है 1 1 1 1 1 1 0 0 0, ठीक है। ये सब लिखा हुआ आया है, तो उसको रीड करता है, और फिर आपके ब्राउजर पे उसको पुट कर देता है, रीड करके एक कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको वो फॉलो करता है, ठीक है। और आपके ब्राउजर पे सामने google.com की विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में बहुत बड़ा प्रोसेस है जो बहुत फास्टर होता है, मतलब हम जो एक साउंड की हमारी जो आवाज है उसकी भी स्पीड से बहुत तेज होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में डेटा हमारा ट्रैवल करता है। नेक्स्ट बात आती है, राउटर हमने कवर कर दिया था। नेक्स्ट बात आ जाती है एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम आता है। फॉर एग्जांपल आपके सिग्नल वीक हो जाते हैं 100 मीटर्स के बाद में, तो 100 मीटर के बाद आप एक एम्पलीफायर लगा दो जो सिग्नल को वापस बूस्ट अप करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिपीटर का भी वर्क यही होता है, सिग्नल को रिपीट करना और वापस एम्पलीफाई करके आगे पुट करना, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एक्सेस पॉइंट की। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, एक्सेस पॉइंट जो हम घर में जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप ये एक्सेस पॉइंट आप रेलवे स्टेशन पे भी देख सकते हो। रेलवे स्टेशन पे 30 मिनट का वाईफाई फ्री है, तो वो जब आप उससे कनेक्ट होगे तो आप किससे कनेक्ट हो रहे हो, एक डिवाइस से कनेक्ट हो रहे हो। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट, ठीक है। ये इस तरह का जो घर का जो हमारा मॉडेम होता है, इस तरह का ही मॉडेम होता है। और भी डिफरेंट कंपनी का होते हैं, ये भी एक एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। इनमें बस ये है कि इनमें एंटीना नहीं है, ठीक है। इन एक्सेस पॉइंट में कोई एंटीना नहीं है, ये सिस्को का है। तो ये डिफरेंट वेंडर्स के आते हैं, टेंडा के भी आते हैं, डी लिंक वगैरह, और भी XYZ आते हैं, नोकिया भी बनाता है, काफ़ी कंपनीज बनाती हैं, ठीक है। तो ये होता है एक्सेस पॉइंट, ये हमारी हेल्प करता है वायरलेसली कनेक्ट होने के लिए। डन। तो ये हमने डिवाइसेस पढ़ लिए, जो जितने टाइप के डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। ब्रिज मैं स्किप कर रहा हूँ, ब्रिज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी बस सेम कॉन्सेप्ट है, स्विच और हब वाला, ठीक है। तो एक बार इसको आप पढ़ सकते हो। डन। अब बात आती है नेक्स्ट, केबल की। तो जब हम केबल की बात कर रहे थे, तो केबल हमने वायर्ड केबल जो पढ़ी थी, वायर्ड केबल्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। वायर्ड में हमने पढ़ी थी ट्विस्टेड पेयर, ठीक है।
ट्विस्टेड पेयर केबल पड़ी थी, ठीक है, और एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर पड़ी थी, ठीक है। अब बात आती है केबल की, तो जो कोई सी भी केबल ले लो आप, यूटीपी लो चाहे एसटीपी लो, उसके अंदर भी क्या और वायर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक यूटीपी केबल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 8 वायर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, ठीक है। ग्रीन ग्रीन वाइट, ऑरेंज एंड ऑरेंज वाइट, ब्राउन एंड ब्राउन वाइट, ब्लू एंड ब्लू वाइट, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं हमारे डायग्राम पे, सेम यही है, यही फॉर्मेट है, ग्रीन और ग्रीन वाइट, ऑरेंज एंड ऑरेंज वाइट, ब्लू एंड ब्लू वाइट एंड ब्राउन एंड ब्राउन वाइट, ठीक है। यही फॉर्मेट होता है। क्या होता है, इन केबल्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। कुछ तरीके होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। क्रिम्पिंग इसको कहते हैं। क्रिम्पिंग मतलब उसको हम केबल जब बनाते हैं तो, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे पीसी एक पीसी से बात करना चाहता है, ठीक है, पीसी एक पीसी से कनेक्ट होना चाहता है, तो उसके लिए हम डिफरेंट केबल यूज लेते हैं। पीसी एक स्विच को कनेक्ट होना चाहता है, उसके लिए हम डिफरेंट केबल लेंगे। पीसी एक राउटर को कनेक्ट होना चाहता है, उसके लिए एक डिफरेंट टाइप की केबल होती है, ठीक है। केबल बाहर से दिखने में एक ही होती है, बिल्कुल सेम केबल है, इसी केबल को यूज करेंगे, बट जो इन वायर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ये डिफरेंट होता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट हैंड है, ये सेकेंड हैंड है, ठीक है, केबल का। फर्स्ट हैंड है, ये सेकेंड हैंड है उसका केबल का। तो इधर अलग वायर, इधर कलर कोडिंग अलग होती है, यहाँ पे कलर कोडिंग अलग होती है। ये डिपेंड करता है हमें इस केबल को हमें किस डिवाइस से कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमें 2 पीसी के बीच में कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम वायर की कलर कोडिंग अलग रखेंगे। स्पिन को हम जब क्रिम्प करेंगे, इस एक टूल से, क्रिम्पिंग टूल आता है, उससे हम इसको क्रिम्प करते हैं, ठीक है। उस तरह से ये केबल हम बना सकते हैं। आगे जो ये जो कनेक्टर्स हैं, इनको कनेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। इन कनेक्टर्स के अंदर जो हम वायर जो है हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर हमें एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे गए, ठीक है, मान लीजिए स्विच है और एक पीसी है, ठीक है। स्विच है और ये एक पीसी है, ठीक है। इनको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करा, एक केबल से हमने कनेक्ट किया, ठीक है। अभी केबल हमने कौन सी यूज ली है, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है, इसमें क्या होता है, 3 तरह की केबल के हम डिजाइन्स होते हैं हमारे पास में, ये कह सकता हूँ मैं। 3 तरह से हम एक केबल को क्रिम्प कर सकते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है स्ट्रेट केबल। मतलब इस स्ट्रेट केबल का कहने का मतलब ये है, अगर आप वाइट ग्रीन एंड ग्रीन और वाइट ऑरेंज एंड ब्लू एंड ये वाले जो फॉर्मेट है, ये वाली कलर कोडिंग एक एंड पे है और दूसरे एंड पे भी सेम कलर कोडिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रेट केबल हो गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट केबल। इट मींस बोथ ऑफ द एंड आर सेम, ठीक है, मतलब दोनों तरफ के एंड्स हैं वो सेम हैं, इसको स्ट्रेट केबल बोलेंगे। नेक्स्ट बात आती है क्रॉस ओवर केबल, ठीक है। अब क्रॉस ओवर केबल कब काम आएगी, क्रॉस ओवर केबल जब काम आएगी जब आपको 2 पीसी को कनेक्ट करना है, ठीक है। 2 सेम डिवाइसेस को जब कनेक्ट करोगे, कभी भी 2 सेम डिवाइस कनेक्ट करना है तो हमें क्रॉस ओवर केबल लेनी है, ठीक है। और 2 डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो हम एक स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कलर कोडिंग आप देख सकते हो, आपके घर में मॉडेम लग रहा होगा, उसकी केबल निकाल के आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये होती है स्ट्रेट और क्रॉसओवर। अब क्रॉसओवर की बात कर रहे थे हम। क्रॉसओवर में क्या होता है, क्रॉसओवर का बिल्कुल सिंपल फंडा है। ये वाला जो एग्जांपल है, ये पूरा इस साइड का, ये पूरा क्रॉसओवर केबल का एग्जांपल है। अब इसको देखते हैं कैसे। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 वायर जो हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब हम जब केबल बिल्ड कर रहे होते हैं, केबल को जब हमें क्रिम्प करना होता है, तो उसमें हमें जो कलर कोड के जो पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट करने होते हैं, ठीक है। एक तो
एक क्या होता है जो हमारी सेकंड केबल होती है 2, ठीक है, जो हमारी 2 वाली जो केबल है ये किस पे जानी चाहिए, ये जानी चाहिए जो नेक्स्ट एंड है जो उस केबल का वो जानी चाहिए 6 पे, ठीक है, और जो 1 वाली जो केबल है वो जानी चाहिए किस पे, 3 पे, ठीक है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है, इसको हम बोलते हैं 12 और 26, सॉरी 12 और 36 और 13 और 26, ऐसे भी बोलते हैं इसको, कि एक तरफ आप 1 और 2 को 3 6 कर दोगे, ठीक है, उसको मतलब थर्ड पे डाल दो और सेकंड नंबर का जो केबल है उसको आप 6 पे डाल दो, ठीक है। तो 12 और 36 इस तरह से अगर आप करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये केबल कहलाएगी क्रॉस केबल, ठीक है। इसके अंदर एक और फॉर्मेट होता है 13 और 36 का, ठीक है, 2 फॉर्मेट होते हैं। आजकल ये केबल बनी बनाई जाती हैं और क्रॉस केबल हमें बहुत रेयर ज़रूरत पड़ती है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर भी एक नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक क्रॉस ओवर केबल भी होती है जो सेम डिवाइसेस के लिए काम आती है। ये भी आप बाज़ार से इजीली ले सकते हो, बहुत मतलब ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं होती है, ठीक है। बस इन वायर्स का ही फ़र्क होता है, इसको आप बुक में और रीड कर लेना एक बार तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल फंडा है, बस जो दोनों एंड होते हैं केबल के वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट में ग्रीन और ऑरेंज इंटरचेंज है। हाँ जसमीत, तो जसमीत ने क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रेट में ग्रीन और ऑरेंज, हाँ इस वाले एग्जांपल में है, बट मैं अपना जो मेरा जो मैंने जो स्टडी करी है उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको। क्रॉस केबल, सॉरी स्ट्रेट केबल मतलब होता है दोनों एंड सेम होंगे, ठीक है, और क्रॉस केबल का मतलब होता है कि हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया, 12 और 26 और 13 और 36 2 तरह के यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है रोल ओवर केबल की, ठीक है। रोल ओवर केबल में क्या होता है, रोल ओवर केबल में फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है आपका, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब इसका जब आप दूसरा एंड बनाओगे इस केबल का, जब दूसरा एंड को आप जब आप बिल्ड करोगे या कनेक्ट करोगे तो इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट होंगे इसके, ठीक है। ये जो पहला एंड है इस वाले को देख लो, इसमें भी नहीं है, ठीक है। जो पहला केबल है वो जाएगा 8 नंबर पे, ठीक है। जो सेकंड केबल है वो जाएगी 7 पे, जो थर्ड केबल है वो जाएगी 6 पे, जो फोर्थ है वो जाएगी 5th पे, और जो 5th है वो जाएगी 4th पे, ठीक है। 5th जाएगी 4th पे और 6 जाएगी 3 पे और 7 जाएगी 2 पे और 8 जाएगा 1 पे। दिस इज कॉल्ड रोल ओवर केबल, ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ द अदर एंड, ठीक है। इसको हम रोल ओवर केबल बोलते हैं। रोल ओवर केबल कहाँ यूज आती है, रोल ओवर केबल हम यूज करते हैं जैसे हमें हमारे राउटर से हमें कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करना है। अब राउटर पे भी कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट्स होते हैं, स्विचेस पे भी पोर्ट्स होते हैं, आगे आगे हम स्टडी करेंगे जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो रोल ओवर केबल का हम यूज लेते हैं जब हमें किसी डिवाइस का एक्सेस लेना होता है या फिर कंसोल पोर्ट से कनेक्ट होना पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। ये रोल ओवर केबल का एग्जांपल है जो मैंने अभी बताया, सेम वही है, ठीक है। इधर वाले जो कलर कोड है ये ऑरेंज से शुरू हो रहा है, ऑरेंज ऑरेंज वाइट ग्रीन, यहाँ से चेक कर लो, ऑरेंज ऑरेंज वाइट ग्रीन, जस्ट अपोजिट है इसका, ठीक है। तो सेम रोल ओवर केबल यही होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। स्ट्रेट केबल किस काम आती है, स्ट्रेट केबल यहाँ पे देख सकते हो आप, या इसको देख लो, बहुत इजी है। राउटर से राउटर कनेक्ट करना है तो हमें क्रॉस ओवर केबल यूज करनी है। पीसी टू पीसी के लिए हम क्रॉस ओवर यूज करेंगे, स्विच टू स्विच के लिए हम क्रॉस ओवर यूज करेंगे, ठीक है। पीसी टू राउटर के लिए हम क्रॉस ओवर यूज करेंगे, ये एक एक्सेप्शन है ये वाला,
बाकी सब देख लो सारे सेम डिवाइसेस हैं। पीसी टू पीसी कनेक्ट करोगे तो भी क्रॉस ओवर है, स्विच टू स्विच के लिए भी क्रॉस ओवर है, ऐसा है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें एक्सेप्शन क्यों है, पीसी टू राउटर में क्यों है। तो अंदर क्या होता है एक्चुअली, अब जिन डिवाइसेस में ये क्रॉस ओवर, जैसे हमें मान लो पीसी टू स्विच, ठीक है, पीसी टू स्विच में हमें क्या है, स्ट्रेट थ्रू केबल लगानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जब स्विच बनाया गया, स्विच का जो पोर्ट बनाया ना, जो स्विच का जो पोर्ट बनाया इसको इन्होंने ऐसा कॉन्फ़िगर कर दिया और अंदर से क्या कर रखा है, इसका 1.3 और 3.6 वाला केबल ऑलरेडी प्लग किया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर ऐसे मतलब कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है ऑटोमेटिकली कि ये डिटेक्ट कर लेता है कि सामने वाला क्रॉस केबल है या फिर स्ट्रेट केबल है या फिर सामने वाला डिवाइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को इंटरचेंज कर लेता है कि मुझे एक एज ए क्रॉस केबल की तरह काम करना है या फिर एक उसकी तरह काम करना है। ठीक है, इसलिए स्विच टू स्विच सेम डिवाइस के लिए क्रॉस केबल का काम, क्रॉस केबल लगानी होगी हमें। ठीक है, क्योंकि इसका जो पोर्ट है वो अंदर उसी हिसाब से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा था केबल वाला फंडा, अंदर केबल्स किस तरह से रहती हैं हमारे पास। ठीक है, क्या हम सेटिंग्स कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है यार, इसके लिए और अगर डिटेल्स चाहिए, हो सकता है मैं भी अच्छे से पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरा समझ में नहीं आ रहा है आपको, सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, बुक से ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसमें सब कुछ। ठीक है, बाकी मेन मैंने जो इसका जो मेन जो कंसेप्ट है वो मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपके, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेटवर्किंग का पहला रूल यही है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट के बेस पे आप किसी भी और कितने भी बड़े नेटवर्क को ट्रबल शूट कर सकते हो अगर आपके पास कंसेप्ट है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें बेस है, इनकी डिटेल आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो या पहली बार नेटवर्किंग पढ़ रहे हो तो आपको इसकी डिटेल में जाना चाहिए। डन। नीचे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, 3 and 6 and 1 and 2 पिन को रोटेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ नेटवर्क। ठीक है, कंपोनेंट्स हमें क्या क्या चाहिए होते हैं एक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। सिंपल कंपोनेंट्स है बिल्कुल। हमें एक लैपटॉप चाहिए होता है या डेस्कटॉप चाहिए होता है, सिस्टम चाहिए होता है, एक चाहिए होता है इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, मतलब डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक सेंट्रल डिवाइस चाहिए होता है, जैसे स्विच हो, राउटर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या चाहिए होता है, मीडिया, मतलब केबल कौन सी यूज़ करोगे ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए हमें कनेक्टर्स, इसके अलावा चाहिए प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। प्रोटोकॉल क्या होता है, अ प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स that allow electronic devices to communicate when with each other. ठीक है, these set of rule includes what type of data may be transmitted or what commands are used to send and receive data. ठीक है, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो प्री डिफाइन होता है। एक मशीन के अंदर हम लोग प्री डिफाइन भी होता है और मैनुअल डिफाइन भी कर सकते हैं हम। जैसे हमारा एक मैनेजेबल स्विच है या मैनेजेबल राउटर है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको उसके अंदर एक प्रोटोकॉल रन कर सकते हैं या एक सेट ऑफ रूल्स रन कर सकते हैं कि हमें किस तरह से डेटा को ट्रांसमिट करवाना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, या एक मशीन से दूसरी मशीन में हमें किस तरह से डेटा को ट्रांसमिट करवाना है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और हम ब्राउज़र पे जाके हम किसी भी वेबसाइट को टाइप करते हैं और एंटर, जैसे ही एंटर हिट करते हैं हम, तो कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको हमारा सिस्टम फॉलो करता है और उन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो जो हम जो एंटर मारने के बाद जो डेटा आईपी पैकेट जनरेट होते हैं, वो आईपी पैकेट उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उस पाथ तक जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बात आती है राउटिंग।
ठीक है, राउटर का काम होता है राउटिंग करना। ठीक है, राउटिंग का मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, डिसाइड करता है, स्टॉप करता है पहले आपको। ठीक है, एक चौराहे पे अगर वो खड़ा होकर के पहले स्टॉप करता है, फिर एक जने का ट्रैफिक रिलीज करता है, फिर स्टॉप करता है, फिर सेकंड ट्रैफिक रिलीज करता है। सेम गोज फॉर राउटर। राउटर इज द डिसीजन मेकर। ठीक है, वो डिसाइड करता है कि google.com का अगर आपने सर्च उसमें लिखा है आपने ब्राउजर में google.com, तो वो कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, इसका डिसीजन राउटर लेता है। ठीक है, राउटर डिसाइड करता है कि ये लैन का पैकेट है या वैन का पैकेट है। तो राउटर देखता है कि ये मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है ये वैन का पैकेट है, तो वो क्या करता है, अपने वैन वाले पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देता है। जब उसको लगता है कि ये तो मेरे लैन नेटवर्क का ही पैकेट है, तो वो क्या करता है, लैन में वापस फॉरवर्ड कर देता है उसको। तो राउटर का काम होता है फाइनली डिसीजन लेना। ठीक है, राउटिंग इसी का पार्ट है। ठीक है, राउटिंग जो राउटर जो भी काम कर रहा है उसको हम कहते हैं राउटिंग। ठीक है, राउटर क्या क्या काम करता है, एक तो बेस्ट पाथ ढूंढता है कि सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है किसी पर्टिकुलर सर्वर तक पहुंचने का। ठीक है, नेक्स्ट है यूज्ड इन राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है, हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। बस आज आप इतना ही ध्यान रखो कि राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट OSI मॉडल हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है, तो OSI मॉडल कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे आज। ठीक है, अब आती है क्वेश्चंस की बात। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो इस टाइम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन सेशन हो जाता है ये वाला। तो जो भी क्वेश्चन है यू कैन टर्न ऑन योर माइक्रोफोन और यू कैन यूज चैट बॉक्स। Guys, any question? Guys, आवाज आ रही है सबको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर क्वेश्चन मैंने तो ये पूछना था कि जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं लैन मैन वैन, हाँ सर ये मेनली सर सर ज्यादातर तो यही पूछे जाते हैं 3 तरह के, है ना सर? क्या आप ना ऐसा करो, लैन मैन के बारे में एक बार स्टडी करो, जो मैंने बुक दी है ना उससे पढ़ लो। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट से पढ़ लो। पूछने वाली बात देखो, ऐसी पूछने को तो दुनिया में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सिर्फ एक इंटरव्यूअर अगर आप होते तो क्या आप सिर्फ लैन मैन पूछ करके डिसाइड कर लेते ये बंदा सिलेक्टेड है? नहीं कर सकते ना हम लोग। ठीक है, तो स्टडी ओवरऑल लेके चलो, कभी दिक्कत नहीं आएगी इंटरव्यू में, कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, यस सर, यस सर। हाँ अब यार ये क्वेश्चन है मेरे पास कुछ, राउटर टू राउटर स्ट्रेट केबल भी यूज हो सकती है। यार राउटर टू राउटर स्ट्रेट केबल यूज हो सकती है, बट उसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको करनी है तो। बट ओवरऑल मतलब पीछे टर्मिनोलॉजी देखोगे तो उसमें क्रॉस ओवर केबल ही होगी, मैं और उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट उसके लिए एक ट्रिक हो सकती है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसको हम वॉल सॉकेट होता है, लैन वॉल सॉकेट। ठीक है, ऐसे वॉल सॉकेट्स होते हैं जो आपने ऑफिसेज में देखा होगा या फिर आपने और भी कई जगह देखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास तो नॉर्मल स्ट्रेट केबल होती है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेट केबल होती है, बट इसके अंदर क्या कर रखा होता है, इसके अंदर ऐसी सेटिंग कर रखी होती है, पीछे की जो पिंस हैं उसको क्या कर रखा होता है, क्रॉस ओवर केबल बना रखा होता है पीछे से। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ सबसे इजीएस्ट वे में। ये एक पीसी है, ये एक डेस्क पीसी है। ठीक है,
ये सेकंड पीसी है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ स्ट्रेट केबल है, तो उसमें क्या करोगे, नीचे एक वॉल जैक लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक वॉल जैक लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये केबल जो जा रही है कौन सी है, स्ट्रेट केबल, ठीक है। इसमें क्या होता है यार, इसमें कुछ नहीं होता, जब दोनों साइड्स होती है ना, दोनों साइड में से क्या होता है, एक साइड को ना रोटेट किया हुआ रहता है, वो हमें मालूम नहीं रहता, ठीक है। दोनों साइड को क्रॉस ओवर किया कर रखा होता है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये हमें मालूम नहीं होता। बट ये जब लैन केबलिंग होती है किसी भी ऑफिस में या किसी भी शॉप पे या XYZ जो भी जगह है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, इसको ऑलरेडी क्रॉस में ही हम लोग क्रिम्प करके रखते हैं, ताकि क्या होता है, नॉर्मल यूजर आता है, उसके पास प्लेन केबल होती है, वो इसमें पुट करता है और वो इधर पुट करता है, तो ऑटोमेटिकली ये क्रॉस केबल का भी काम कर लेता है और दूसरी वाली केबल का भी, प्लेन केबल का भी काम कर लेता है, ठीक है। इसकी सेटिंग्स ऐसे करी जाती है, ठीक है। तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रिक है, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन वॉल हेलो मनीष। हाँ हेलो बोलो। मनीष, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा जो L2 लेवल स्विच होता है, जो L2 लेवल पे काम करता है, वो मैक के एड्रेस टेबल कैसे क्रिएट होता है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? यार वहां तक अभी हम पहुंचे ही नहीं है, ओके ठीक है, थैंक यू। उस टॉपिक पे अभी हम पहुंचे नहीं है। जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो उसके बारे में जरूर बात करेंगे, ठीक है। उन सबको हम कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसको मैं बिल्कुल हाँ सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैं पूछ रहा हूँ सर, जैसे आपने बताया कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड, जो हर बॉक्स जो होगा, जो वॉल कनेक्टिंग जो होता है लैन का, हाँ तो ये तो एक दूसरे से कनेक्टिंग होगा, जैसे फर्स्ट से सेकेंड कनेक्ट होगा और सेकेंड से थर्ड कनेक्ट होगा। हाँ और सर, और जो मेन वायर जो आएगी सर, इसमें जो इसमें इंटरनेट सप्लाई आएगी, जो वो लैन में जो आ रही है, वो कहाँ से, वो राउटर से कनेक्टेड होगा या स्विच से कनेक्टेड होगा? तो जो जहाँ से मेन सप्लाई आ रही है इसमें। मेन सप्लाई का मतलब नहीं समझा मैं सर। जो ये आपने ये लंबा वाला जो खींचा है, तो इसमें सर जो इंटरनेट की सप्लाई है, तो वो स्विच से आती है या फिर मतलब राउटर से निकलती है? वो हम यार कहीं भी कर सकते हैं। हम सिंपल सबसे बेस्ट और इजीएस्ट फंडा ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये 24 पोर्ट का स्विच है, ठीक है, 24 पोर्ट का स्विच है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक सिंगल मॉडेम ले लो, ठीक है। आपने ये मॉडेम ले लिया, इस मॉडेम को क्या करो, इस स्विच से कनेक्ट कर दो, तो इसके जो 24 के 24 जो पोर्ट होंगे ना, 24 के 24 पोर्ट को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, सिंपल। अच्छा सर, ये जो पीसी से हम ये तो सिंपल प्लेन केबल हम कनेक्ट करते हैं लैन में। हाँ। और सर ये जो लंबा वाला केबल है, ये कौन सा केबल होता है? ये वाला, ये भी लैन केबल ही है, लैन केबल है। ये भी सारे सिंपल केबल ही? हाँ, ये सारे लैन केबल जितने भी वॉल सॉकेट्स लगे रहते हैं किसी भी ऑफिस में, फॉर एग्जांपल 100 वॉल सॉकेट लगे हुए हैं, 200 लगे हुए हैं, तो वो सारे जाके एक जगह बंच के इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, बंच के इकट्ठे हो जाते हैं और वो किस में लग जाते हैं, फिर स्विच में। हाँ सर, वो हमारे ऑफिस में भी लगे हैं, वो सारे एक जगह जाके वो बंच हो रहे हैं। हाँ, बस वो स्विच में लग जाते हैं और स्विच के बाद वो जाता है मॉडेम में, मॉडेम के आगे जाता है वो राउटर में, और राउटर के आगे लगी रहती है एक फायरवॉल, ठीक है। इस तरह से होता है। फायरवॉल के आगे होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, अनिर्बान बोल रहा था सर। हाँ बोलो। हाँ सर, बोल रहा था कि L3 स्विच और राउटर में तो बेसिक डिफरेंस होता है कि एक होता है सर मैनेजेबल, और राउटर जो है वो आईपी के ऊपर पूरा काम करते हैं। इसके सिवा और क्या डिफरेंस होते हैं सर? यार राउटर L3 स्विच की और उसके भी हम बात नहीं कर रहे हैं वैसे तो, ठीक है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो यार, राउटर का प्योर काम है राउटिंग, ठीक है, राउटर का प्योर काम है सिर्फ राउटिंग करना, ठीक है। बट जो L3 स्विच होता है उसका काम क्या होता है, स्विचिंग भी करवानी है और राउटिंग भी करवानी है, मतलब लेयर 2 लेयर 3 दोनों के बेस पे डिसीजन लेना है, ठीक है। इजीएस्ट वे में समझने के लिए गो टू द गूगल router and layer 3 switch
डिफरेंस। ठीक है, आ गया? यहाँ पे जाओ। हाँ। सिंपल वे में, बिल्कुल सबसे इजीएस्ट वे यही है। ठीक है, किसी भी चीज को पढ़ना है सिर्फ इमेजेस में पढ़ो, आपको थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़नी है इसमें। ठीक है, यहाँ पे जाओगे। अब राउटर की बात करते हैं यहाँ पे। यार ये आप पढ़ सकते हो, मैंने ये इस रिकॉर्डिंग में ये आ गई है इमेज। ठीक है, आप पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो फिर ये इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ओके ओके, इसको ठीक है आप ठीक पढ़ है। सकते हो। हाँ, क्योंकि अभी हम बात नहीं कर रहे हैं वहां तक, लेयर 3 स्विच बहुत आगे की बात है, हम अभी CCNA पे चल रहे हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? गाइस कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको फिर हम क्लोज करते हैं आज के सेशन को। एनी क्वेश्चन गाइस, यू कैन टाइप ऑन द चैट बॉक्स। Where do we use rollover cable? Okay. यार ये बी राउटर यूज इन, यार ये सब मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप सिर्फ CCNA की बात कर रहे हो, मैं सिर्फ CCNA लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको इतनी नॉलेज है तो आप फिर CCNA को क्यों कर रहे हो? ठीक है, कोमल का क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज रोल ओवर केबल। ठीक है, रोल ओवर केबल बता देता हूँ मैं। रोल ओवर केबल ये होती है। ठीक है, एक एग्जांपल है रोल ओवर केबल का। इसको हम किस काम में लेते हैं? रोल ओवर केबल को हम किस काम में लेते हैं? इसको हम लेते हैं, इसको हम कंसोल केबल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस पिक्चर देख लो आप। ठीक है, इसकी पिक्चर में क्या है, एक एंड पे ये जैक लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं DB9 कनेक्टर। DB9 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 9 पिन्स होती हैं, 1 2 3 4 5 और ये 4 यहाँ पे है, टोटल 9 पिन्स है, 9 पिन का सेट है। ठीक है, और दूसरे एंड पे क्या होता है? सिंपल RJ45 कनेक्टर होता है, जो हम जिस केबल की बात कर रहे हैं तो ये इस तरह से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो रोल ओवर का जो यूज होता है वो मेनली हमें क्या होता है, किसी भी डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए। ठीक है, आई कैन से लाइक दैट कि जैसे राउटर का एक्सेस लेना है तो हम इस रोल ओवर केबल का यूज करके हम ले सकते हैं। ठीक है, अब उसकी कुछ सेटिंग्स अलग होती हैं। रोल ओवर केबल में क्या होता है, अलग अलग तरह की स्पीड्स और बिट्स का ट्रांसमिशन ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है, इसलिए रोल ओवर केबल हम यूज लेते हैं। ठीक है, ये जनरली यूज नहीं आती है। ठीक है, किसी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम रोल ओवर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं इस पे इंटरनेट कुछ बोलता है तो। हाँ सर, मेरा नेटवर्क था उस टाइम चला गया था। क्या आप सर लैन वैन और मैन के बारे में सर शॉर्ट वे में कुछ बता सकते हैं? मैं समझ नहीं पाया था। मैं यार आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, उससे आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल पोर्ट को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए हम कौन सी केबल यूज कर रहे हैं? रोल ओवर केबल। ठीक है, तो ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। सारे ऑलमोस्ट डिवाइस ही कनेक्ट कर रहे हैं, यही एक एग्जांपल है जो बेस्ट है सबसे। ठीक है, ये रियल टाइम एग्जांपल है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ STP एंड UTP? 100 मीटर। 100 मीटर इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है, उसके बाद सिग्नल वीक होने लग जाते हैं। 100 मीटर के बाद हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ता है। या तो आप एम्पलीफायर लगा सकते हो, या फिर आप कोई रिपीटर लगा सकते हो, या फिर आप कोई स्विच लगा सकते हो जो इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके वापस अगेन 100 मीटर तक ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, चाहे STP केबल हो चाहे UTP केबल हो, दोनों केबल्स के लिए होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस और कोई क्वेश्चन? अदरवाइज आज क्लोज करते हैं आज को।